ویلکم بیک بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کے انخلا میں صرف 8 روز باقی۔ ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں 36,199 غیر ملکی رہائش پذیر ہیں، جن میں افغانی، چائنیز، بنگالی اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے شہری شامل ہیں۔ کس ڈویژن میں کتنے غیر ملکی شہری مقیم ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بہاولپور ڈویژن میں 15,818، ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں 10,444 اور ملتان ڈویژن میں 9,927 غیر ملکی رہائش پذیر ہیں۔ سب سے پہلے بہاولپور ڈویژن کے اضلاع کی بات کرتے ہیں۔ ضلع بہاول نگر میں 928 افغانی، 11 بنگالی، 17 چائنیز، 1,152 دیگر ممالک کے شہری شامل ہیں۔ ضلع بہاولپور میں 1,005 افغانی، 27 بنگالی، 24 چائنیز، 4,305 دیگر اور رحیم ارخان میں 2,938 افغانی، 131 بنگالی، 81 چائنیز اور 5,199 دیگر غیر ملکی شہری مقیم ہیں۔ ضلع ڈیرہ غازی خان میں 714 افغانی، 31 بنگالی، 16 چائنیز اور 1,426 دیگر ممالک کے شہری۔ لیا میں 639 افغانی، 4 بنگالی، 5 چائنیز اور 2,099 دیگر۔ مظفر گڑھ میں 997 افغانی، 44 بنگالی، 27 چائنیز، 2,706 دیگر غیر ملکی۔ راجن پور میں 457 افغانی، 24 بنگالی، 27 چائنیز اور 1,328 دیگر غیر ملکی شہری مقیم ہیں۔ ضلع ملتان میں 1,771 افغانی، 25 بنگالی، 34 چائنیز اور 2,413 دیگر غیر ملکی۔ خانے وال میں 905 افغانی، 12 بنگالی، 28 چائنیز، 1,338 دیگر۔ لودرا میں 372 افغانی، 19 بنگالی، 9 چائنیز، 1,005 دیگر اور ضلع وہاڑی میں 1,058 افغانی، 19 بنگالی، 23 چائنیز، 898 دیگر غیر ملکی شہری رہائش پذیر ہیں۔ تمام غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکی شہری عزت کے ساتھ واپس چلے جائیں ورنہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ میاں والی انتظامیہ نے غیر ملکی شہریوں کے لیے وارننگ جاری کر دی۔ فوکل پرسن کا کہنا تھا کہ لسٹیں تقریباً مکمل ہیں۔ وفاق کے پلان کے مطابق انتظامیہ 31 اکتوبر کے بعد کارروائی شروع کر دے گی۔ انتظامیہ 21 اکتوبر کو کارروائی شروع کر دے گی۔ تمام غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکی شہری عزت کے ساتھ واپس چلے جائیں ورنہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ میاں والی انتظامیہ نے غیر ملکی شہریوں کے لیے وارننگ جاری کر دی۔ فوکل پرسن کا کہنا تھا کہ لسٹیں تقریباً مکمل ہیں۔ وفاق کے پلان کے مطابق انتظامیہ 31 اکتوبر کے بعد کارروائی شروع کر دے گی۔ غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکی شہریوں کی واپسی کے لیے متحرک فوکل پرسن ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اسامہ مجید چیمہ نے بتایا کہ 31 اکتوبر تک تمام غیر ملکی واپس چلے جائیں گے ورنہ آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لسٹیں تکمیل کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ وفاقی اور صوبائی اداروں کے جمع شدہ ڈیٹا کو ملایا جائے گا۔ وفاق کے پلان کے مطابق 31 اکتوبر کے بعد کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ اس حوالے سے ڈیٹا جو ہے وہ ہم نے کمپائل کرنا شروع کیا جی، چونکہ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس میسر نہیں تھا۔ وہ ڈیٹا ہم بھی کمپائل کر رہے ہیں ضلعی سطح پہ بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ وہ بھی اس کو ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں ڈیٹاز جب ہمارے کمپائل ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم انشاءاللہ میچ کریں گے، اس کے بعد باقاعدہ جو ہے ان کی واپسی کے آپریشن کا جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا۔ فوکل پرسن کا کہنا تھا کہ تمام غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکی شہری عزت کے ساتھ واپس چلے جائیں ورنہ انتظامیہ سخت کارروائی کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ میں تمام ان لوگوں کو جو انلیگل ہیں، غیر قانونی طور پہ یہاں پہ مقیم ہیں، ان سے یہی درخواست کروں گا کہ اس ڈیڈ لائن سے پہلے وہ یہاں سے خود ہی جو ہے والنٹری اپنے خود جو ہے واپس جائیں عزت مندانہ طریقے سے۔ اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس میں ہمیں کبھی بھی جو ہے کہیں یوز آف فورس یا کوئی ایسا پہلو استعمال کرنا پڑے جس سے کسی کی چادر چار دیواری یا کسی کی دل آزاری والا اسپیکٹ جو ہے وہ سامنے آ سکے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اسامہ مجید چیمہ کا مزید کہنا تھا کہ غیر ملکی شہریوں کی واپسی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ دوسری جانب ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا نایاب، شہری لمبی قطاروں میں رول گئے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ 8 روز سے آٹا نہیں مل رہا، گھنٹوں انتظار کے بعد بھی خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی۔ ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام، شہریوں کے لیے سستے آٹے کا حصول مشکل ہو گیا، خواتین لمبی قطاروں میں رل گئیں۔ ہمیں بہت دیر ہو گئی، ہم 9 بجے کے آئے ہوئے ہیں تو ہمیں آٹے کا بتاتے ہی نہیں ہے کب آئے گا، ابھی آ جائے گا، سارا دن ادھر گزر جاتا ہے ہمارا، لیکن ہمیں آٹے کا نہیں بتاتے۔ خواتین کا کہنا تھا کہ گھنٹوں انتظار کے بعد بھی آٹا نہیں ملتا، 8 روز سے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی قلت ہے۔ صبح آؤں شام نے الٹا بک جا، آٹا نہیں ملتا،
आटे के मारे धक्के खाने पड़े, खड़ा होया नहीं जाता, बीमारी के गिला नुए धक्के देंदे हमें, पीर तान लग रहे, 4-5-8 दिन हो गए धक्के खाने लग रहे, आटा नहीं मिल रहा। खवातीन का मजीद कहना था कि गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। शहरी सुबह से शाम तक स्टोरों के बाहर खरीदारी के लिए मुंतजिर रहते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। पंजाब हाईवे अथॉरिटी की नाअहली मुल्तान का सबसे बड़ा तरक्याती मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है। नादराबाद फ्लाईओवर 2 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। इंडस्ट्रियल एस्टेट और शेरशाह रोड के ताजरों का कारोबार मुतासिर, सड़क को मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया, राहगीर परेशान है। पंजाब हाईवे अथॉरिटी की नाअहली के बाइस शहर औलिया का सबसे बड़ा मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो गया। शहरियों का कहना था कि फ्लाईओवर जल्द मुकम्मल न होने की वजह से कारोबार ठप और ट्रैफिक मसाइल बढ़ गए हैं। 2 साल का मंसूबा 4 साल में भी मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। इस इलाके में बहुत लोग परेशान हैं, मार्केटें दुकानें सब बंद हो चुकी हैं। कुछ लोग हैं ये रोजगार से लोग परेशान हैं, हम भी कई दफा यहाँ गिरे हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि फ्लाईओवर के ऊपर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल भी नाकिस है। ठेकेदार पानी का छिड़काव भी नहीं करते। गर्द गुबार के बायस सांस की बीमारियां जन्म ले रही हैं। और जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि ये कच्चा फाटक है, ये बंद हो जाता है। इसकी वजह से स्कूल के बच्चे आने जाने वाले परेशान हैं। रिक्शे यूं गली महलों से गुजरते हैं, वो पूरे इलाका ये गार्डन टाउन वाला ये ट्रैफिक से परेशान है। शहरियों और ताजरों ने आला काम से फ्लाईओवर जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसीब के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। अब रुख करिए डेरा गाजी खान का। डेरा गाजी खान इंतजामिया की नाअहली आवाम के गले पड़ गई। शाह सिकंदर रोड टूट फूट का शिकार, सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। शहरियों का कहना था कि सड़क पर बारिश का पानी कई दिन तक जमा रहता है। शाह सिकंदर रोड को असर-ए-नो फौरी तौर पर तामीर किया जाए। डेरा गाजी खान में शाह सिकंदर रोड खंडरात का मंजर पेश करने लगा। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना था कि बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा होने की वजह से गुजरना महाल हो जाता है। पानी है, खुआरी है, बाल बच्चे अंधे, मोटरसाइकिल डहदे डी रात कने इतना शुरू कर चुंगी तक कोई हालात नहीं। अगर बारिश ना होवे तो सेवरे का पानी इकट्ठा थी वैसी, अगर वो सेवरे का पानी हट वजे तो बारिश का पानी है, ना बंदा निकल सकते, ना बच्चे सारे स्कूल बन सकते। ये हुए गली के अंदर स्कूल है, ना बाल बन सकते ना आ सकते। शहरियों का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता कई साल से सड़क की तामीर नहीं हो सकी। ऐलानात तो बहुत किए गए मगर अमल आज तक नहीं किया गया। सर ये सड़क जब तक फारूक खान लेगारी ये बनवाया, फारूक खान लेगारी के बाद कोई नहीं बनाया। जो वज़ीर आज़म आया, जो अमसर आते हैं, जो अमसर आएगा इधर मिट्टी डालेगा ना, वो पानी डालेगा, मिट्टी डालेगा, वो अमसर चला गया, वही खड्डा बन जाते हैं। पानी लेता पे हालात खराब हैं, बाल बच्चे सारे स्कूल में देना सब मजबूर है। ये पानी का हालात है, अगर सकल सवार डाल दे वो बाल दे कपड़े भी बनीज वेंदल। शहरियों का मजीद कहना था कि फौरी तौर पर सड़क को असर-ए-नो तामीर करके उन्हें मुश्किलात से निजात दिलवाई जाए। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान इंतजामिया की मुबैना नाअहली सामने आ गई। हुजूरी बाग रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। वासा की जानिब से फंड जारी होने के बावजूद सड़क की मुरम्मत न हो सकी। शहरियों के लिए सड़क से गुजरना इम्तिहान बन गया। मुल्तान इंतजामिया की मुबैना गफलत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। सीवरेज लाइन खराब होने से हुजूरी बाग रोड पर कई माह से गंदा पानी जमा है और राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। नमाजी भी परेशान हैं। रोड की खस्ता हाली की वजह से शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। जब भी बारिश होती है, यकीन करें आप मंजर देखें ना, तो इतना इतना पानी इकट्ठा हो जाता है। सीवरेज लाइन बिल्कुल बेकार है। शहरियों का कहना था कि 3 माह हो गए अभी तक इंतजामिया सड़क से पानी नहीं निकाल सकी। कारोबार ठप, जबकि ट्रैफिक हादसात भी बढ़ गए हैं। यहाँ अगर किसी की डेथ हो जाए या कोई मरीज हो जाए, यहाँ से कोई नहीं गुजर सकता। ये दुकानें सारी खाली हो रही हैं। ये ऐसा लगता है कोई देहात में आ गए हैं। और यहाँ से इतनी मुश्किलात का सामना है। यहाँ गंदगी बहुत है, ना कोई आ सकता है ना ही कोई जा सकता है। शहरियों और दुकानदारों ने इंतजामिया से सीवरेज लाइंस की जल्द बहाली का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। कोट अदो इंतजामिया की नाअहली। शहर भर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। रही सही कसर सफाई सुथराई की नाक़िस सूरत हाल ने पूरी कर दी। शहरियों का कहना था कि पानी का मयार आम नल के पानी से भी नीचे चला गया है।
कोटद्दू इंतजामिया की नाअहली के बायस शहरी मुज़िर सेहत पानी पीने पर मजबूर। 2010 के सैलाब के बाद शहर भर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मुनासिब देखभाल न होने की वजह से नाकारा हो गए। पानी का मयार आम नल के पानी से भी नीचे चला गया। ये जो लाखों रुपए लगाकर शहर में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे, ये सारे नकारा हो चुके हैं। तो बराए मेहरबानी ये इनको दोबारा बहाल किया जाए ताकि शहरी इससे मुस्तफीद हो सके, जबकि सादा पानी की जो है लेवल वो इससे बेहतर है। शहरियों का कहना था कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स की देखभाल पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन पानी के मयार पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मुख्तलिफ NGOs की जानिब से मुतादिद फिल्ट्रेशन प्लांट्स के पानी का मयार चेक किया गया, जो आम घरेलू पानी से भी कम तर निकला। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मौलाना, रोही, कोटद्दू। उधर भक्कर का लारी अड्डा खंडरात का मंजर पेश करने लगा। वॉशरूम की सहूलत है, ना ही सीवेज सिस्टम। सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं, लाइट्स भी नकारा, गाड़ियां खटारा बनने लगी। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। बखर के लारी अड्डे पर सहूलियात का फुकदान। लारी अड्डे की अंदरूनी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, वॉशरूम्स बंद और जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं। नाकिस इंतजामात के बायस ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। ना कोई सफाई वगैरह है, ना बाथरूम वगैरह है, ना कोई लैटरीन का कोई सिस्टम है। इतना तो अजाब तले चढ़े पे हैं। मुश्क अलहदा खांदा है जी, बीमारी अलहदा थी है जी, पर्चियां देने हैं जी, पर्ची तो बावजूद वाला आलूदगी घिन के वहने हैं जी, बीमारी घिन के वहने हैं। कोई सेहतमंद असा कहने खड़े जेड़ी जगह ते वहने बदबू है, मुश्क है। ये सामने रह गिनो तारे बैक साइड तो क्या पोजीशन आती पई है जी। ये देखें ना, सड़कें सारी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं और इधर ना तो कोई मुसाफिर खाना है, इतनी गंदगी है और मच्छर डेंगू इतनी बीमारी हो रही हैं और इनका कोई नोटिस लिया जाए। बखर के लारी अड्डे में सीवरेज सिस्टम मौजूद ही नहीं, जबकि लाइट्स भी नाकारा हो चुकी हैं। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों ने कमिश्नर सरगोदा और डिप्टी कमिश्नर बखर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सफदर अब्बास के साथ असलम बलोच, रोही न्यूज, बखर। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करें। जराइम पेशा अनासर ने मुल्तानियों की हिफाजत का मंसूबा नाकाम बना दिया। 8 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाई ओवर पर लगाई जाने वाली बाड़ चोरी होने लगी। शहर ओलिया के बासियों को पतंग की डोर से बचाने का मंसूबा नशे के आदी अफराद ने नाकाम बना दिया। MDA की जानिब से 8 करोड़ की लागत से तमाम फ्लाई ओवर्स पर लगाई जाने वाली बाड़ चोरी होने लगी। शहरियों का कहना था कि बाड़ लगाना अच्छा कदम है, मगर इसकी देखभाल भी बहुत जरूरी है। MDA का अच्छा इकदाम था। ये नशेई तारे वगैरह चोरी करते हैं, अभी नट भी इसके खोल लिए हैं, तारे भी चोरी कर रहे हैं, तो इंतजामिया इसके ऊपर जरा तवज्जो दे थोड़ी सी। चोरों ने मुल्तान के सबसे बड़े फ्लाई ओवर से भी बाड़ चोरी कर ली। राहगीरों का कहना था कि ये बाड़ हमारी हिफाजत के लिए लगाई गई है, मगर नशे के आदी अफराद और चोर तारों को काट रहे हैं, अवाम का नुकसान हो रहा है। मुतालबा ये है कि इसकी हिफाजत की जाए, चद्दर लगाई है तो वो अच्छा है, वेल्ड कराए जाए, वेल्ड नहीं टूटता। फिर ऐसे ये काट के तारे प्लास्टिक साथ ले जाते हैं, हरोनियाँ काट देते हैं। ये पार्क में देखें जाके सारी ये हरोनियाँ बैठे हुए हैं। शहरियों ने इंतजामिया से जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब पंजाब सरकार आवाम की सेहत के लिए फिक्रमंद। जनूबी पंजाब भर में हफ्ता सेहत का आगाज। शुजाबाद, भक्कर, रंगपुर, अहमदपुर शर्किया और जतोई के तहसील अस्पताल में मेडिकल कैंप लग गए। हेपेटाइटिस, एड्स और TB के टेस्ट और अदवियात की मुफ्त फराहमी। शुजाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सेहत कैंप लग गया। शहरियों को तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। एडमिन ऑफिसर ने बताया कि सेहत कैंप में बच्चों के तमाम अमराज का मुकम्मल मुआयना किया जाएगा। शहरियों का कहना था कि मौजी अमराज से बचाव के लिए ऐसे कैंप्स का इनाकात जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर भक्कर डॉक्टर अनवर महमूद अवान ने भी सेहत कैंप का इफ्तिताह कर दिया। डिजिटल रजिस्ट्रेशन और सहूलियात फराहम की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पंजाब सरकार शहरियों की सेहत के लिए मुतहरिक है। शहरी अपने मुकम्मल टेस्ट मुफ्त करवा सकते हैं। रंगपुर के दही मरकज सेहत में हफ्ता सेहत का आगाज हो गया। शहरियों के मुफ्त टेस्ट किए जा रहे हैं और बच्चों की वैक्सीनेशन भी जारी है। डॉक्टर का कहना था कि मरीज मुफ्त सहूलियात से मुस्तफीद हों। अहमदपुर शर्किया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सेहत कैंप 26 अक्टूबर तक जारी रहेगा। हेपेटाइटिस, एड्स और TB के टेस्ट किए जाएंगे, जबकि इलाज मुफ्त किया जाएगा। कैंप सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जतोई तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में भी हफ्ता सेहत का आगाज हो गया। MS का कहना था कि शहरियों का स्क्रीनिंग, टेस्ट और इलाज मुफ्त किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्तफीद हों। शहरियों ने हफ्ता सेहत को आसान इकदाम करार दे दिया। और अब कहरोड़ पक्का के शहरियों के लिए अच्छी खबर। समाजी शख्सियात की जानिब से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डायलिसिस मशीन और RO सिस्टम पहुंचा दिया गया। अब मरीजों को गुर्दे वॉश कराने की मुफ्त सहूलियात मैसर होंगी।
है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। कैरोड पक्का की समाजी शख्सियात ने खिदमत खलक की आला मिसाल कायम कर दी। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल में डायलिसिस मशीन पहुंचा दी गई। अब हस्पताल में 4 डायलिसिस मशीनें नस्ब की जा रही हैं। इससे कबल मरीजों को भावलपुर या लोधरा जाना पड़ता था। 4 रोज तक डायलिसिस यूनिट फंक्शनल हो जाएगा। रोजाना 8 मरीजों को गुर्दे वाश कराने की मुफ्त सहूलत मुयस्सर होगी। हमने डोनेशन बेसिस पे उन तमाम मुखर्रर हज़रात को हमने ऑन बोर्ड लिया कि आए जी हमारे साथ दे। तो हम जब उनके तमाम का जो शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि जो आप मेरे पीछे आप डायलिसिस मशीन्स देख रहे हैं ये प्योरली ऑन डोनेशन बेसिस हैं। तो हम डोनेशन पे उन्होंने जो हमें ये मशीनें दी। अब जो मेरी टेक्निकल टीम जो है वो मुल्तान से आई हुई है वो इंस्टॉल कर रही है। इंशाल्लाह विद इन जो 2 to 3 डेज ये जो इंस्टॉल हो जाएंगी और इसी हफ्ते में जो है हमारी कोशिश होगी हम इसको जो है वो फुली तौर पर फंक्शनल कर दें। MS का कहना था कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। एक सेहतमंद इंसान ही सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है। डायलिसिस मशीनों की वजह से कैरोड पक्का के शहरियों को जदीद तिबी सहूलियात मिलेंगी। कैमरा टीम के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोही, कैरोड पक्का। अवामी मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हुक्म दे दिया। इस हवाले से कल वीडियो लिंक मीटिंग भी होगी। अवाम के मसाइल अब होंगे हल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने स्पेशल ब्रांच को मुतहर्रिक कर दिया। स्पेशल ब्रांच 17 इंडिकेटर्स के तहत किसी भी इंतजामी गलती या कोताही को दूर करेगी। पंजाब भर के शहरी अपनी शिकायत स्पेशल ब्रांच तक पहुंचा सकते हैं। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर अवामी मसाइल फौरी हल होंगे। मसाइल हल न होने की सूरत में पोर्टल पर मॉनिटरिंग होगी। एक पोर्टल उन्होंने बनाया जो गवर्नेंस से डायरेक्ट रिलेटेड है, जिसमें कोई 17 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर किसी भी ज़िले की परफॉर्मेंस जो है वो चेक की जाएगी, जिसमें प्राइस चेकिंग से शुरू होके जो एनक्रोचमेंट्स हैं, कहीं पे वॉल चेकिंग हुई हुई है, शादी की जो 1 डिश है उसकी वायलेशन हो रही है। जितनी स्पेशल ब्रांच चीज़ों को मॉनिटर कर रही होती है वो उस ज़िले की जहाँ भी कंप्लेंट होगी वो अपलोड किया करेंगे और कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो फ़ौरन उस पर एक्शन लेके एक्शन टेकन की रिपोर्ट जो है वो अपलोड किया करेगा, ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी मॉनिटर भी हो सके और गेज भी हो सके और आवाम की शिकायत का अजाला जो है वो भी फ़ौरन किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान कल पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट लेंगे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर ने इस हवाले से मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान के इजलास की सदारत की। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। धूल उड़ाती और फराटे भरती गाड़ियों का मेला 8वीं थल जीप रैली 9 नवंबर से शुरू होगी। 100 से ज्यादा ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे। ट्रैक 200 किलोमीटर तवील होगा। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब का इनेकाद किया गया। टूरिज्म डेवलपमेंट से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। GM टूरिज्म डेवलपमेंट वाहिद अर्जुमन ने बताया कि थल जीप रैली 9 नवंबर से शुरू होगी। ट्रैक 200 किलोमीटर तवील होगा। 8वां एडिशन है थल जीप रैली का और इसके जो डेट्स हमने अभी अनाउंस किए हैं वो है 9 नवंबर को इसका आगाज़ होगा और 12 नवंबर को इसकी जो क्लोज हो जाएगी और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी 12 तारीख को होगी। वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख कासिम सईद का कहना था कि थल जीप रैली तफरीही और एडवेंचर से भरपूर है। लोगों का कारोबार भी चमक जाता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस तरह के इवेंट्स को हर प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट करता है। अच्छी पॉजिटिव सोशल एक्टिविटी किसी भी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकती है और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करते हुए मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना रोल प्ले कर रहा है। बल्कि मैं आपके कैमरे के तवज्जुह से मुल्तान के देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारा अपना ओवर ओन जो है वो शहर का इवेंट है। थल जीप रैली का आगाज 9 नवंबर से होगा। पाकिस्तान भर से 100 से ज्यादा ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट छांगा मांगा टीला हेड मोहम्मद वाला होगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान।